Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maghfiratu. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium Standard 10 Subject English Lesson 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom. As we all know that the Long Walk to Freedom is the title of Nelson Mandela autobiography, and in the last session we came across the pledge of Nelson Mandela that he was taken in the amphitheater building in Pretoria. So in these sessions we will continue with the chapter. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union Building. He said that he was talking about the processions of the uh, army, air force taken at the time. ही सेड दैट कि हमने थोड़े टाइम बाद हमने जब हमारी आंखें आसमान की तरफ करी, ऊपर करी, तो हमने देखा कि एक स्पेक्टेकुलर नज़ारा था, एक इम्प्रेसिव नज़ारा था ऊपर। साउथ अफ्रीकन जेट्स जो थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो आसमान में रॉर कर रहे थे, यानी कि आसमान में आवाज़ कर रहे थे, एंड परफेक्ट फॉर्मेशन में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वो फ्लाई कर रहे थे। It was not only a display of pinpoint precisions and military forces, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. It's not only the precision, ये कोई एक precision सिर्फ नहीं था कि मिलिट्री फोर्स को ये एक ऑनर देना था आज के दिन, ये सिर्फ वो नहीं था, but a demonstration of the military loyalty to democracy and to a new government that had been freely and fairly elected. But it shows the military's loyalty towards the democracy and towards the freely and fairly elected new government. Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. And after that, नेल्सन मंडेला सेड दैट के थोड़े ही टाइम के पहले, यानी थोड़े ही दिन पहले ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जितने भी जनरल्स, पुलिस और जनरल्स थे, जिन्होंने अपने चेस्ट पे, यानी कि अपने यूनिफॉर्म पर बहुत सारे रिबन्स सजाए हुए थे, रिबन से डेकोरेट की थी जिन्होंने अपनी चेस्ट यानी कि यूनिफॉर्म, एंड बहुत सारे मेडल्स थे, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही उन्होंने मुझे सैल्यूट करा था और अपनी लॉयल्टी की प्लेज ली थी. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. But ये जानकर आप लोगों को थोड़ा शॉक लगेगा, और मैं ये चीज़ से अवेयर भी था कि थोड़े टाइम पहले ये जितने भी यानी ये फोर्सेस है, जो डिफेंस फोर्सेस है और पुलिस है, ये सब ने मिलकर मुझे अरेस्ट किया था, बट आज यही लोग मुझे सल्यूट कर रहे हैं. फाइनली अ chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flags. जो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स के कलर्स थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, वो इम्पाला जेट्स ऊपर स्मोक छोड़ रहे थे आसमान के अंदर. और वो शेवरॉन किसको बोलेंगे, जो वी शेप में, वी पैटर्न के अंदर ये जेट्स चल रहे थे इम्पाला के, और हर एक जेट अपने अपना अलग अलग कलर्स रिलीज कर रहा था, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, गोल्ड, और ये सब कलर्स जो थे वो न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosaki Sikelel Africa and black singing Das Stem and the old anthem of the Republic. At that time, Nelson Mandela said that it was a symbolized day for me. It was a remembered day for me because at that day, two national anthems sang in the amphitheater. At that time, white singing Nkosaki Sikelel Africa and black sing at that time Das Stem, the old anthem of the Republic, and this black singing the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, and at that day the both group don't know the lyrics of the both anthem. ओके, ईच अदर्स एंथम वी कैन से. ये जो वाइट्स जो सिंग कर रहे थे निकोसाकी सिकेलेल अफ्रीका, इसके लिरिक्स पता नहीं थे ब्लैक्स को, और ब्लैक्स जो गा रहे थे डाई स्टेम, इसके जो लिरिक्स थे वो पता नहीं थे वाइट्स को. बिकॉज वंस बिफोर they both groups
hatred to each other. That's why they do not know the lyrics of the anthems. They would soon know the words by heart. और नेल्सन मंडेला ये बोल रहे हैं कि थोड़ा टाइम बाद ऐसा होगा कि थोड़े टाइम बाद ऐसा होगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनको बाय हार्ट हो जाएंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. And नेल्सन मंडेला said that उस दिन मैं बहुत सेंसिटिव हो गया था हिस्ट्री को लेकर अफ्रीका की. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. He said that in the first decade of 20th century, Anglo-Boer War के बाद का टाइम एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और ये जो नेल्सन मंडेला है उनकी पैदाइश के पहले का टाइम, एंड ये जो एंग्लो बोर वॉर हुई थी उसके बाद का टाइम, दैट इज द सम मिडल टाइम. ये वाइट स्किन पीपल जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ पैचअप कर लिया था. उनके डिफरेंसीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैचअप किया, एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक रेशियल डोमिनेंस सिस्टम्स क्रिएट की जो डार्क स्किन पीपल को उनकी ही लैंड पर, उनके ही नेटिव में उन्होंने मैनिपुलेट्स करना शुरू कर दिया. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन. ये जो स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया था, दैट ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन के मोटिव को लेकर इन्होंने जो पॉलिटिकल पूरा फॉर्मेशन बनाया हुआ था, पूरी जो ये जो लैंड है, अफ्रीकन लैंड है, वहाँ के जो नेटिव्स है वो नेटिव्स को परेशान करना शुरू किया था, या उनको मैनिपुलेट्स करना, उनको प्रेस्ड करना, उनको डोमिनेट करना शुरू किया था. दैट इज द मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन. ये इतनी ज़्यादा, यानी ये ह्यूमन को ह्यूमन समझ, यानी ब्लैक्स को ये ह्यूमन नहीं समझते थे. दे वाइट थिंक that they are slaves and they are born to slavery of us. वो हमारी स्लेवरी करने के लिए पैदा हुए, ये यूँ समझते थे. At नेल्सन मंडेला mentioned that this is the harshest and most inhuman formation of the societies in the world. ये बहुत ज़्यादा inhuman formation था. Now in the last decades of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedom of all peoples regardless of the colors of their skin. And what he said that के जब ये जो इन्होंने ये जो फ्रेज यूज़ किया है ना, 8 डिकेड एज अ मैन, ये स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी के फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, ओके, और अभी आ गई है 20th सेंचुरी का एंड. एंड एट द टाइम माई ओन 8 डिकेड एज अ मैन, खुद का 8 डिकेड होना, यानी 70 to 79 ईयर्स ओल्ड हो गए जब नेल्सन मंडेला. ही सेड दैट द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉरएवर. और ये सिस्टम जो था कलर डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से पॉलिटिकल पूरा वे अपनाना, ये पूरा हमेशा के लिए ओवरटर्न हो गया एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल. और ये किस चीज़ में रिप्लेस हुआ? हर एक इंसान रिगार्डलेस ऑफ द कलर्स ऑफ देयर स्किन, उनकी स्किन का कलर कोई भी हो, वो सब इंसानों का राइट्स एंड फ्रीडम को याद रखा जाएगा. इसे डेमोक्रेसी सिस्टम के अंदर हम एंटर कर गए. The day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. At the time, this Nelson Mandela recalled and remembered the patriots, the freedom fighters of the South Africa, who sacrifices their lives for the nations. Nelson Mandela said कि ये दिन आया है, बट किस तरीके से आया? तो
बहुत 1000 लोगों ने अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस दिए, और उनकी जो सफरिंग थी, उन्होंने जो बैर किया, उनको जो मैनिपुलेट्स किया गया, उन्होंने जो बैर किया है, वो उनकी सफरिंग और उनका जो करेज, जो हिम्मत थी, वो कभी भी काउंट नहीं हो सकती। कभी भी मैं उसका जुर्माना, यानी उसका जो जुर्माना नहीं बोलेंगे, ऐसा बोलेंगे कि उसका जो बदला देना चाहिए वो एहसान का, वो मैं कभी नहीं दे पाऊंगा। I felt that day as I have known on so many others days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. I felt that day, मैं उस दिन ऐसा फील कर रहा था, और ऐसा तो मैं कई बार फील करता हूँ, बहुत सारे दिनों में फील करता हूँ कि ये जो अफ्रीकन पैट्रियोट्स जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, उनके बदले में मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ। उनको मैं सिंबलाइज करके यहाँ पर खड़ा हूँ, वो सब पैट्रियोट्स को। That long and noble line ended and now began again with me. और वो आज सब चले गए, मुझसे पहले चले गए। डिटरमाइंड पैट्रियोट्स थे जिन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अपनी जान दे दी, अपने देश के लिए अपनी जान दे दी, वो आज चले गए, बट उनके बदले मैं आज खड़ा हूँ यहाँ पर। एंड वो लाइन, नोबल लाइन, ऑनरेबल पर्सन्स थे सारे, आज वो उनकी लाइन खत्म हो गई एंड मेरी मुझसे स्टार्ट हुई। आई वॉज पेन्ड that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. And मैं आज बहुत तकलीफ में, आई एम sorrowful on this day because मैं उनका कोई थैंक नहीं कर सकता, और वो खुद आज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है कि उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस दिए हैं उसका आज आउटपुट क्या आया है, उससे हमने क्या अचीव किया है, वो देखने के लिए वो आज हमारे बीच में नहीं है। इट्स अ लेंथी चैप्टर, थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, ओके। और यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ओके। अल्लाह हाफिज़।